Namaste everybody. How are you? I hope you will be fine. We are reading Robert Browning's poem My Last Duchess Ferrara. That is a dramatic monologue. Up to now, we have read in our previous classes all the situation, all the background, all the theme of the poem. An envoy, the messenger, comes to the Duke with the wedding proposal. Now they are discussing wedding proposal. In this context, Duke Alfonso II takes the envoy to the gallery and shows a picture which is hanging on the wall. And this picture was covered with a curtain. The Duke removes the curtain and shows the picture to the messenger and says to the messenger that this is my last duchess. Pointing towards the picture, Duke says the messenger that this picture is of my last duchess, late wife, the queen. They are discussing about the quality of the picture. Picture is so vivid and so lifelike that messenger gets bafflement. Seeing his bafflement, the Duke tells him that I get this picture done only in a single day by Friar Pandolf. Friar Pandolf works from morning to evening, and result of his hard work and continuous work, this picture is here. Suddenly, the messenger notices the reddening and the color and complexion of the pictures and wants to ask a question. Before he asks a question, Duke says that this reddening, this flush, this complexion in the face of my late wife is not because of my presence, but this is the reason of some simple task. Duke tells the messenger that why did he get this picture done by Fra Pandolf. Fra Pandolf is an imaginary artist, he is a monk, and he did not give him another day. He gets this picture done in a single day. He did not give him another day because of his suspicious, possessive behavior. He is narrow minded. He did not provide another day because he does not want the intimacy between the painter and his wife. In this context,
Duke says that this reddening, this happiness on her face is not because of mine, and suggests so many reasons. And these reasons are here. देखो, अब तक हम जो पढ़ चुके थे वो मैंने अब तक बताया. इससे आगे कल की जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने जाना कि वो एक कारण बताता है कि उसके जो चेहरे पर लालिमा है वो उसके प्रेजेंस से नहीं है, शायद किसी और कारण से है. अब वो क्या कारण है वो आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि जो ड्यूक है वो और आगे के क्या कारण इसके बारे में बतलाता है. लेट्स स्टार्ट. देखिए, तरीका वही है. हम पहले इसके वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे. देखिए, फ्राप एंड ऑल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स. अब तक की जो लाइन थी वो हमने पढ़ी थी. हमने पढ़ा था her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek perhaps. Sure, it was not her husband's presence. Sir, ये जो प्रसन्नता है उसके चेहरे पर, प्रसन्नता के कारण जो फ्लश है, जो रेडनिंग है, वो उसके पति की उपस्थिति के कारण ही नहीं है. आगे क्या है? Her husband's presence called that spot. उस कारण से ही ये चिन्ह नहीं है, ये हम कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं. Of joy into the Duchess cheek, जो डचेस है, जो मेरी क्वीन है, उसके जो गालों पर ये जो लालिमा है, ये जो रेडनिंग है, ये मेरे उपस्थिति के कारण नहीं है. तो फिर शायद फ्राप एंड ऑल चांस टू से. तो क्यों है शायद ऐसा हुआ होगा? वो गैस करता है. कौन गैस करता है? ड्यूक. क्या हुआ होगा शायद? क्यों आ गई उसके चेहरे पर ये लालिमा, ये मुस्कुराहट, रेडनिंग कैसे आया, ब्लश कैसे आया? फ्राप एंड ऑल्फ आप पहले से जानते हो, एन इमेजिनरी आर्टिस्ट. चांस टू से मीन्स कैजुअली कमेंटेड. देखो, एक एक वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे. फ्राप एंड ऑफ चांस टू से हर मेंटल लैप्स. मेंटल मीन्स क्लॉक, लैप्स मीन्स कवर्स. फ्राप एंड ऑफ चांस टू से means casually commented, mental means clock, lap means covers. पहले वर्ड मीनिंग देख लें. Over my ladies, ladies means यहाँ डचेस है. Risk too much or paint, must never hope to reproduce. Reproduce means imitate. Imitate to copy. The faint, half plus reddening. Reddening of face, dies, vanishes or disappears. Along, about, her throat, such stuff. इसके यहाँ दो अर्थ हैं, दोनों की चर्चाएं करेंगे. स्माइल इन रिटर्न, कर्टसी, पोलाइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन. She thought and caused enough. Reason. These are the difficult words.
अब इसका अनुवाद देखें। फ्रापेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लेब, ये जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसके चेहरे पर जो लालिमा है, वो उसके पति की उपस्थिति के कारण नहीं है। तो क्यों है? शायद, परहैप्स आपने पिछले उसमें पढ़ा, शायद, शायद क्यों है? फ्रापेंडोल्फ चांस टू से, चांस टू से कैजुअली कमेंटेड, फ्रापेंडोल्फ ने बस ऐसे ही कह दिया होगा हर मेंटल लैप्स की, हर उसका, हर किसका? डचेज का। हर मेंटल लैप्स, मेंटल क्लॉक, क्लॉक मीन्स लबादा, ऊपर से नीचे तक का पहनने का कपड़ा होता है क्लॉक। लैप्स कवर्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि जो वो है, डचेज है, उसका जो कपड़ा है वो ढकता है ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, मेरी पत्नी के, मेरी रानी के, मेरी क्वीन के हाथ को बहुत ज्यादा, उसकी रिस्ट को, कलाई को बहुत ज्यादा ढकता है। शायद वो इस वजह से शर्मा गई होगी या मुस्कुरा गई होगी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर रेडनिंग हो गया, लाल हो गया, रंग उसका जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, काउंटेनेंस वर्ड आया था कल, हमने बताया था। शायद फ्रापेंडोल्फ ने ये कह दिया होगा कि तुम्हारा जो कपड़ा है वो तुम्हारे हाथ को बहुत जरूरत से ज्यादा ढकता है। शायद इस वजह से वो शर्मा गई होगी या प्रसन्नता से उसके चेहरे पर खुशी आ गई होगी, और उसकी वजह से उसके चेहरे पर लाल रंग आ गया होगा। ये पहली लाइन है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेट, ये बहुत अच्छी लाइन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। और अथवा, या तो उसने ऐसा कहा होगा, अथवा पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, पेंट मस्ट नेवर होप, रिप्रोड्यूस मीन्स टू इमिटेट, नकल करना, द फेंट, ये जो तुम्हारा हल्का सा हाफ फ्लस, फेंट हाफ फ्लस, फेंट मीन्स डिम, हल्का सा जो रेडनिंग, चेहरे पर जो रेडनिंग का रंग है, रेडनिंग है चेहरे पर, जो मुस्कुराहट से, प्रसन्नता से, शर्म से कारण जो भी हो, चेहरे पर जो तुम्हारे ये लालिमा का रंग है, जो ये लालिमा का रंग है, मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस इन पेंट, इसको कभी भी इमिटेट नहीं किया जा सकता। अर्थात तुम्हारे चेहरे पर जो ये लालिमा का रंग है, कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको रंग में पेंट करके किसी भी स्थिति में दर्शाया नहीं जा सकता। मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द पेंट हाफ प्लस, ये जो तुम्हारे चेहरे पर लालिमा का रंग है, इसको किसी भी अवस्था में कैसे भी करके पेंट के द्वारा इसकी कॉपी नहीं की जा सकती, इतना सुंदर चित्र नहीं बनाया जा सकता। या फिर उस फ्रापेंडोल्फ ने ऐसा कह दिया होगा, या तो उसने ये कहा होगा जो ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो क्लॉक है, लवादा है, उसका जो बाहरी हिस्सा है, आस्तीन है, वो कलाई को ज्यादा ढक रहा है, इस वजह से वो शर्मा गई होगी, अथवा वो मुस्कुरा गई होगी, उस वजह से उसके चेहरे पर, उसके चीक्स पर, गालों पर लालिमा आ गई है। अथवा उसने ये कहा होगा, क्या, दैट इज द गेसिंग, ये सिर्फ उसका अनुमान है। किसका अनुमान है? ड्यूक का। ड्यूक बता रहा है कि आखिर क्यों है इसके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है। लोग तो नहीं पूछने की हिम्मत करते हैं मुझसे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ड्यूक बता रहा मैसेंजर को, मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हार्पलेस दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, ये जो रेडनिंग फेस है तुम्हारा, दैट डाइज जो लुप्त हो रहा है, अलोंग हर थ्रोट, उसके अबाउट द थ्रोट, गले के पास आकर के, ये जो चेहरे पर लालिमा है, ये जो रेडनिंग है, फेस है, कॉम्प्लेक्शन है, जो गले के पास आ रहा है गालों से होता हुआ, इस रंग को किसी भी तरह से पेंट में कॉपी नहीं किया जा सकता। ओके, इस वजह से वो हंस गई होगी, मुस्कुरा गई होगी, तो उसका चेहरा शायद हो सकता है कि इस वजह से लाल हो गया हो।
आगे देखें, सच स्टफ वाज कर्सी शी थॉट एंड कॉज इनफ। आगे की पंक्तियां लाइंस अभी पढ़ेंगे। सच स्टफ के स्माइल इन रिटर्न वाज कर्सी। अब देखो इस लाइन के दो तरीके से अर्थ निकल सकते हैं। सच स्टफ कि ये जो वापसी में उसकी मुस्कान है, वाज कर्सी सिर्फ एक शिष्टाचार है। कर्सी पोलाइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन, एक शिष्टाचार भरी उसकी मुस्कुराहट है, अर्थात इनके वापसी में शिष्टाचार में वो शायद इस तरह से मुस्कुरा गई होगी। एंड कॉज इनफ, और ये उसका पर्याप्त कारण है, यानी ऊपर जो लिखे हुए हैं उनका ये शिष्टाचार भरी मुस्कुराहट पर्याप्त कारण है। यानी कि ये जो ऊपर हैं ये पर्याप्त कारण है किसके? उसकी शिष्टाचार से भरी मुस्कुराहट के। सी थॉट, उसने सोचा होगा कि ये जो कर्टसी से भरे शब्द हैं, ये जो ऊपर हैं लिखे हुए कारण हैं जो उसने फ्रा पेंडोल्फ ने कहा उससे, तो ये उसने सोचा, सी थॉट, मेरी क्यून ने डचेज ने सोचा होगा कि इसके जो ये ही पर्याप्त कारण है मुस्कुराए जाने के लिए। किस लिए? उसके शिष्टाचार में, जो उसने प्रशंसा की उसके शिष्टाचार में मुस्कुराना पर्याप्त, यानी ये ऊपर लिखे कारण जो हैं पर्याप्त हैं कि वो शिष्टाचार में इस तरह से मुस्कुरा जाए। ओके, ये इसका हिंदी मीनिंग है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। देखो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हम सिर्फ ये सुनने के लिए करा रहे हैं, एग्जाम के लिए जो कराएंगे वो हम लिखाएंगे, सिस्टमेटिक लिखाएंगे। ठीक है, देखिए, Frappendorf chanced to say her mental lapse, giving the reason of the reddening of her face. Duke says to the messenger that perhaps Frappendorf said to my wife that her clothes are covering too much area of her wrist, and I am not able to imitate the so delicacy of the color that the queen has, and this reddening that comes from cheek to the throat is not taking its courtesy. So this plus which is from cheek to the throat can't be copied with any tool and with any arts. Okay, and these admirable words are enough for my wife to smile. She has a kind heart and she is so simple that these words of admiration are sufficient for her happiness. Okay, इसके बाद अगली 4 लाइंस, नेक्स्ट 4 लाइंस की बात करेंगे। आप इसे तब तक देखिए नेक्स्ट 4 लाइंस। These are another 4 lines. देखिए, पिछली जो अभी हमने पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा दिया था वाज कर्टसी शी थॉट एंड कॉज इनफ, पर्याप्त कारण है इस चीज के लिए, यही चीजें कि वो मुस्कुराए, किसमें? शिष्टाचार में। नेक्स्ट 4 लाइंस, दीज आर इजी लाइंस। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, ये ही पर्याप्त कारण थे। पिछली लाइन से जोड़ना पड़ेगा। पिछली लाइन में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉज इनफ एंड
cause enough and cause enough पर्याप्त कारण है for calling up that spot of joy, spot of joy, reddening the face, reddening the face and complexion of the face, and cause enough पर्याप्त कारण है for calling up that spot of joy, इस प्रसन्नता के, जो उसके चेहरे पर प्रसन्नता है उसके लिए इतने से ही कारण पर्याप्त हैं। मैंने प्रारंभ में बताया था कि आपको कि जो ड्यूक होता है वो इसके जनरोसिटी से, उसके जनरस नेचर से बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, जेलस है। मैंने आपको बताया था कि जो डचेस है उसके लिए, उसके पति को प्रयास करने के लिए वो कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करती, उसको खुश करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करती। उसको अगर कोई छोटी भी वस्तु दे तो भी वो उतना ही खुश हो जाती है, और जितना कि उसका पति कोई बड़ा उपहार दे तब भी उतना ही खुश हो जाती है। शुरुआत की क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, इस प्रसन्नता को लाने के लिए, ये जो एंड कॉज इनफ पर्याप्त कारण है जो हमने अभी पढ़े थे 1 मिनट पहले, फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, ये प्रसन्नता की, उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए ये कारण पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? देखिए, सी हैड ए हार्ट, उसके पास एक दिल था। सी हैड ए हार्ट, उसके पास एक दिल था। दिल तो सबके पास होता है। इस वाक्य से ये कहना क्या चाहता है? उसके पास ये कहना चाहता है कि उसके पास एक बहुत ही दयालुता का और जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाला दिल था। How shall I say? How shall I say? How shall I say means I do not have, I don't find appropriate words for expressing my feelings. How shall I say? मैं कैसे कहूं? अर्थात मेरे पास उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। I don't have words, I don't find words for expressing her generosity. How shall I say? मेरे पास उचित शब्द नहीं है, appropriate words नहीं है। For expressing my feeling, उसके प्रति मेरी भावनाओं को बताने के लिए। For calling up that spot of joy, she had a heart. How shall I say? कैसे बताऊं मैं? Too soon made glad. Too soon made glad. बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। Too soon made glad. बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता था उसे। Too easily, बड़ी आसानी से impressed, प्रभावित किया जा सकता था। Impressed, influenced. How shall I say? मैं कैसे कहूं? Too soon made glad, उसे बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता था। यानी वो छोटी सी चीजों से प्रसन्न हो जाती थी। Too easily impressed, बहुत आसानी से उसे प्रभावित किया जा सकता था, इम्प्रेस्ड किया जा सकता था। उसके लिए ज्यादा किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत कभी नहीं होती थी उसे इम्प्रेस करने के लिए और उसे प्रसन्न करने के लिए। She lacked whatever she looked. मेरी जो पत्नी थी, जो दिवंगत पत्नी थी, she looked, she lacked whatever she looked. She lacked, वो पसंद कर लेती थी। She lacked, वह पसंद कर लेती थी। Whatever she looked, जो भी उसे कुछ दिखाई देता था, जो कुछ भी उसे दिखाई देता था
वो सबको पसंद कर लेती थी, यानी छोटी छोटी चीजें भी उसे पसंद थी। कोई ऐसे नहीं था कि उसे कोई बहुत बड़ा उपहार दे तो ही वो जाके कहीं प्रसन्न होगी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, ये ही सबसे बड़ी समस्या है उसके जीवन की। शी लैक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो भी मेरी पत्नी को दिखाई देता था, वॉट एवर सी लुक्ड, जो कुछ भी उसे दिखाई देता था, सी लैक्ड, वो उसे पसंद कर लेती थी, यानी वो ही उसे अच्छा लगता था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, एंड हर लुक्स, और उसकी निगाहें, वेंट एवरीवेयर, हर जगह जाती थी, हर किसी चीज को देखती थी। देखो, हर किसी चीज को देखती थी, जिसे देखती थी उसे ही पसंद कर लेती थी, चाहे उसे जो भी दिखे वो उसे अच्छा लगता था, जो भी उसे दिखता था उसे अच्छा लगता था। यही कारण था उसकी जेलसी का, ये जो वजह थी उसकी कि वो जो भी उसे कुछ दिखाई देता था, इसको रचिस को, उसे ही वो पसंद कर लेती थी, उससे प्रसन्न हो जाती थी। उसे प्रसन्न करना बहुत आसान था और उसे इम्प्रेस करना भी बहुत आसान था। इस वजह से ही वो जो रेनेसा पीरियड की एरिस्टोक्रेसी और जेलसी है, वो ड्यूक को इसका जो एक करेक्टर है, काइंडफुल करेक्टर है, ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ओके, देखिए इन दिस लाइन टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ हर हैप्पीनेस, poet Robert Browning says that to make her happy, we need not any strong performance, any strong reason. She becomes happy with the simplest thing. She had a generous and kind heart. She has so kind heart that I cannot express in my word. I do not find appropriate words for expressing my feelings, my views, my opinion about her. I don't have words so that I can explain her behavior, the generosity of her heart, the kindness of her heart. She can be impressed, she could be impressed, and she could be made happy very easily. She lacked everything. My wife has so kindful heart that she lacks everything. Whatever she notices, she like that. No matter whether the thing is valuable, worthy, or worthless. No matter thing is useful or useless. Everything fascinates her. Everything on which she have glance makes her happy. कोई भी वस्तु जो उसे दिखाई देती थी वो उसे प्रसन्न कर देती थी. And that was the reason this type of behavior of her wife, this type of heart was the reason of jealousy of Duke. Duke belongs to the aristocracy of Renaissance period, and the kind and generous behavior of her wife was the only reason of his jealousy. And because of his behavior, his jealousy, Duke got murdered her wife.
ओके, इसी व्यवहार के कारण ड्यूक जो था बड़ा परेशान था, उससे ईर्ष्या करता था। यहाँ तक कि इस पोएम को हम पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे इसी व्यवहार की वजह से उसने अपनी पत्नी का मर्डर करवा दिया, यानी उसकी हत्या करवा दी। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक्स।